वो है तो अंदर ही है। Right. All right, so let me share my screen and then we'll start the session. All right. So thanks everyone for joining the session. So for some security reason, I just mute to everyone. So if you guys having any question, just let me know. So just raise your hand. So I'll just take that question as well. Okay. All right. So let me start this session. Good evening, Krishna. I hope you are doing well. So welcome you all in the Gwinnett Technology, and today we are going to start that Fortinet firewall, right? So that is going to be very interesting because this is the first session we are going to discuss about the Fortinet firewall. We'll do the deep dive about the Fortinet firewall. We'll talk everything about the Fortinet firewall. We'll try to understand what is a firewall and how Fortinet firewall is making impact in the market and why you should learn this Fortinet firewall. And also we'll discuss about the certification of the Fortinet firewall, what all certification you are going to get through this all session. Means after completing this session, what kind of the knowledge you are going to get, and after that what kind of certification you are going to achieve, and which level of the knowledge and which level of the support model you are going to give to your organization. And if you're looking just for the upgradation of knowledge, then how it is going to make career transformation from any network or any other security domain to the Fortinet firewall domain. So these all things we are going to discuss throughout the session, and this is more about like open session, so this is just think about the webinar kind of the stuff. So still I'll give the opportunity, you guys raise your hand, you guys put your query over the chat, because I cannot take every query throughout this session. So हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, right? So ये हिंदी में भी चलेगा session and इंग्लिश में भी चलेगा, so no need to worry about anything at all. So जैसा आप लोग comfortable होगा वैसा हम कर लेंगे, right? I can see few chats are here for the Hindi and English दोनों में करना है. Yes, we'll do that both language. But today is open session, so we'll talk about more in English and also little bit in Hindi as well. But in future, definitely the session is going to happen in the Hindi as well. All right. So let's start. Right. So in this session, right, we can see the Fortinet firewall, right? So there is a very confusion about the Fortinet and FortiGate. So first you have to understand, is it the Fortinet firewall or it is the FortiGate firewall? Because the Palo Alto is a firewall, right? We having the Cisco ASA firewall, right? We having the suppose firewall, we having the checkpoint firewall. Similarly, we having the FortiGate firewall or Fortinet firewall. People are very confused when they're just discussing about the brand of the Fortinet or FortiGate. So let me give the clarification about it. The Fortinet is the company. The Fortinet is the company, and this company basically produce a product that is the FortiGate. So the FortiGate is like the one of the product where you can just do the all firewall feature. So Fortinet is the company and FortiGate is just one of the product. So similarly in the FortiGate section we having a lot of product. So Fortinet company develop lot of product, but we are going to cover that is the Fortinet company one of the product, that is a FortiGate firewalls, right? So if we talk about the little bit about the history of this company, so you can see this company was basically uh, this company is known as a cyber security company, and this is founded on the 2000, which is 23 years ago, right? And based on the US, California. And earlier this company, like the owners of this company was like they start with this product that is the Fortinet cyber security, or might be the firewall product. Initially they start with the one of the product that is the FortiGate firewall product.
But later on, they introduced a lot of different product as well in terms of the routers, in terms of the wireless, in terms of the SD-WAN, in terms of the cloud security. So you can see Fortinet is a cyber security company with a headquarters in Sunnyvale, California. The company develop and sell the security solution like the firewall. This was the initial business when the company start their business. That was the first firewall they developed. That is a FortiGate firewall. So this was the firewall. That is a FortiGate firewall. This is a physical firewall they developed initially, but later on they added lot of devices. They added lot of devices. On that devices, we can use in the different use cases. Like if you want to run the SD-WAN solution, you can use the SD-WAN solution that is belong to the Fortinet, or you can talk about the FortiGate. Company is the Fortinet. Again, I'm repeating, and product is the FortiGate. Similarly, if you want to just use the enterprise firewall, you can use the enterprise firewall. That is a FortiGate firewall. If you want to use some kind of the sandbox features, right? So you having the Forti sandbox, Forti clients that's the acting as a VPNs, Forti manager just acting as a panorama centralized dashboard, right? By sitting on the centralized dashboard, you can do a lot of communication. So you can use the Forti manager, Forti analyzer, Forti endpoint, right? And also you having the Forti UTM, Forti enterprise carrier switch, even they having a routing, Forti AP also, Fort SIEM as well. So a lot of product we have, but based on your need, you can use the products, right? So you can see brothers Ken G and the Michelle G was the founded this company in 2000. The company first main product was the FortiGate as a physical firewall. The company later added the wireless access point, SD-WAN solution, sandbox, that is a cloud-based security, and the messaging security. And this company went to the public as a public company in 2009. So this having the very long journey, this company having the very long journey, and throughout this journey the company developed a lot of products. This company developed a lot of products. So we are just going to focus right now the one product, that is the Fortinet firewall, that is the FortiGate firewall. Okay, so अब इस फायरवॉल के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम सीखने की कोशिश करते हैं, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन. सो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ और थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में. सो देखो, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन द वेरी इनिशियल स्टेज. सो देखो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, जो फोर्टिनेट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो और थोड़ा डीपर साइड में जाते हो, तो अगर आपको इसको एनालाइज करना है हाउ द फोर्टिगेट प्रोडक्ट्स लुक्स लाइक. सो आपके पास देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, जो आप इस वेबसाइट पे जाके https या www.fortinet.com/products पे जाके अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. और इन सारे प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मतलब है, बट हम सारे प्रोडक्ट को कवर नहीं करने वाले हैं. वी कैन नॉट कवर एवरी प्रोडक्ट इन दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन प्रोडक्ट, दैट इज अ फायरवॉल. बट यू कैन सी हियर in this we having the application delivery controller, the Forti ADC, Forti analyzer. We'll discuss about this in our session. We'll discuss the Forti manager. It's also might be somewhere in the next slides. So you'll see the Forti manager also. See Forti manager, Forti IPS. So have a lot of products. You can say email security, Forti cloud as well. We have FortiGate cloud native firewalls also we have, right? So network authenticator we have. We having a DDoS production. If you want to use that, solution is also available. So list is very big. IPS, the LAN cloud switch, 40 OS carrier, LTE 5G wireless solution, 40 monitor, 40 OS, 40 PAM. So 40 isolator, identity and access management. Likewise, Cisco ISC if you want to use. Similar, we have the product that is a identity and access management, that is also part of this 40 net firewall products, right? If you go in the next 40 policy, we have 40 proxy, we have that is going to access GScler as a proxy, Prisma access for the Palo Alto acting as a proxy. So if you want to use the cloud-based security, you want to use the proxy solution, that is also available with you, right? Secure SD-WAN, this is the quite popular right now. Secure SD-WAN also available. So if you want to use the secure SD-WAN, that is also possible. We can use the secure SD-WAN as well. If you want to utilize the Forti trust identity, that is also available. Web application firewall, this is also likewise the web firewall. We if we use the F5,
हम F5 यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको वेब फायरवॉल मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेब फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन बेस अगर आपको फायरवॉल फीचर यूज करना है, फिल्टरिंग करना है, उस पर कोई पॉलिसी अप्लाई करना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस Fortinet प्रोडक्ट। पब्लिक क्लाउड सिक्योरिटी लाइक विद डीएनएस सिक्योरिटी, किसी और तरीके का अगर आप सिक्योरिटी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए करना चाहते हो, दैट इज आल्सो अवेलेबल। SASE solution, secure access services, that is a key in the market. Like Zscaler is selling the SASE solution, Prisma Access is selling the SASE solution, right? So Netscope is selling the SASE solution. Similarly, this Fortinet also having their SASE solution. Cisco also selling the SASE solutions. But right now, Zscaler is quite popular. Prisma Access is quite popular. But Fortinet also having the solution and it's keep selling in the market. So they also having the very good customer base, right? So you cannot ignore the Fortinet products as well. Secure web gateway, that's again part of the SASE solution. So if you want to secure your all internet-based communication, whatever the internet-based destination you want to access, so something cloud-based, secure-based gateway, which is acting as a proxy. So all the communication which is like coming from their branch location, that is going to that is going through your data centers. That is a publicly hosted data center. Could be the Zscaler data center, could be the Palo Alto data center, could be the FortiGate data centers that is hosted in the cloud, and then your traffic from the branch location or any user based location is going to be inspected by the cloud based all your providers. And after inspecting those your traffic, जो भी आप वेब ट्रैफिक जैसे google.com एक्सेस करना चाहते हो, facebook.com एक्सेस करना चाहते हो, if you want to access any kind of the other traffic like Amazon आप एक्सेस करना चाहते हो, so these all are going to be accessed through the your cloud providers solution. And the secure web gateway, one of the feature is going to be integrated there, and आप उस feature को use करके basically you can like secure your all communication, means any user trying to access any internet based application and this DC, ये मान के चलो क्लाउड है, ISP के थ्रू कनेक्टेड है, और ये कोई भी SASE सॉल्यूशन आपने ले रखा है, यहाँ पे आपने SWG लगा रखा है, मतलब वन ऑफ द कंपोनेंट यू इंटीग्रेटेड। सो अगर ये यूजर गूगल बेस्ड डॉट कॉम एक्सेस करता है, अगर आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट के लिए, HTTPS रिक्वेस्ट के लिए कि यूजर गूगल पे नहीं जा सके, दैट इज गोइंग टू ब्लॉक बाय दिस सिक्योर वेब गेटवे। So secure web gateway, any communication, web communication. What is a web communication? अगर ब्राउजर में जाके कुछ भी आप ब्राउजिंग करते हो, यहाँ पे अगर जाके कुछ भी अगर डालते हो google.com, ये वेब कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जाकर आपने cisco.com खोला यहाँ पे, सो ये यहाँ पे आपका ये वेब कम्युनिकेशन हुआ, राइट? ये भी एक वेब कम्युनिकेशन हुआ। आपने कोई लैब खोला, जैसे rax.guinet.com का हमने लैब खोला यहाँ पे, जैसे लैब एक्सेस करना है, सो दिस इज ऑल्सो वेब कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन, देखो ये नॉन सिक्योर है, मतलब HTTPS communication. HTTPS is a secure communication. So HTTPS is secure. That is going to happen on the port 443. HTTP is a web communication, but that is the port 80. ये आपका non secure communication हुआ, right? ये आपका secure communication हुआ। So ये सारी चीजें जो non secure हो या secure हो, anything which is coming through your web, means your web browser के through जिसको आप originate करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी कम्युनिकेशन गोइंग टू मैनेज बाय द सिक्योर वेब गेटवे, जिसको हम SWG बोलते हैं। और वहां से आपका बेस्ड ऑन योर पॉलिसी, अगर मैंने बोला कि facebook.com एक्सेस नहीं होना चाहिए, सो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने वहां पे उसको ब्लॉक कर रखा होगा। सो दैट लेवल ऑफ द फीचर, इफ यू वांट टू integrate with your security or proxy solution or SASE solution, that secure web gateway is going to play a very vital role. 40 टोकन्स, लाइक अगर आपको वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होती है, टोकन्स की जरूरत है जी डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, तो ये सब टोकन की भी फैसिलिटी आपको देता है। आपको वायरलेस लैन WLC आपको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, AP चाहिए, ये सारे सॉल्यूशन भी Fortinet के साथ अवेलेबल हैं। अगर आपको वॉइस ओवर IP, राइट, IP टेलीफोनी की भी चाहिए, यू कैन सी 40 वॉइस सिक्योर यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सॉल्यूशन भी इनके पास है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल विद दिस Fortinet प्रोडक्ट। सो अगर आप Fortinet कंपनी के बारे में बात करो तो इसके पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत हाई लेवल कैप्चर किया है, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट आर कैप्चर्ड हियर, से सारे प्रोडक्ट हैं। बट व्हाट वी आर टारगेटिंग टुडे, we are not targeting all the products, we are targeting only one product, that is a firewall. And which firewall? Enterprise firewall. So this is the enterprise firewall, this is the known as the 40 sorry 40 gate firewall. So this is the firewall we are going to targeting, and by targeting this firewall we have to do the deep dive each and every feature of this firewall.
इवन इस फायरवॉल के अंदर भी हम देखेंगे कि किसी ट्रैफिक को मुझे अलाउ करना है HTTP मींस पोर्ट 80 पे जो ट्रैफिक वेब ट्रैफिक चल रहा है, किसी ट्रैफिक को जो 443 पे सिक्योर पे चल रहा है, कोई URL फिल्टरिंग करना है, कोई वायरस को मुझे ब्लॉक करना है, राइट, किसी स्पाइंग एक्टिविटी को मुझे ब्लॉक करना है, राइट। सो हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट, कोई डीडोस अटैक को मुझे ब्लॉक करना है, राइट, कोई डेटा लीक को मुझे ब्लॉक करना है, कोई डेटा लीक ना करे हमारा, ठीक है। सो हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, कोई वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन को मुझे ब्लॉक करना है, ये कैसे करेंगे, किसी फाइल को मुझे ब्लॉक करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, किसी जीरो डे अटैक को मुझे ब्लॉक करना है, जीरो डे अटैक, so how this zero day attack is going to block by this 40 gate firewalls. So there is a lot of things, so policy, how the policy is going to block based on the layer 3 IP address, right, based on the port numbers. So these all is going to part of this discussion, because जो भी हम Palo Alto firewall हो या कोई भी next generation firewall की जब भी बात करते हो, so these firewalls having these all features, किसी में आपको अलग नाम मिलेगा, किसी में आपको अलग नाम मिलेगा, बट दीज ऑल आर गोइंग टू बी सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, जहां पे आप बैठ के आप बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हो और उनको आप उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो इन दिस in this particular session we are going to discuss about the lot of thing about that firewall feature, जो भी FortiGate firewall कर सकती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको लैब एक्सेस अगर आप लोग स्टार्ट करोगे अपनी प्रैक्टिस, सो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, सो आप लोग को थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे फीचर है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्स करिकुलम एज वेल। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप लोग लुक एंड फील करो कि कैसा मतलब फायरवॉल दिखती कैसी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है, ताकि आप लोग को थोड़ा मजा आए आगे चलकर ना, कि व्हाट इज अ गोल वी आर गोइंग टू अचीव दैट। सो जैसे मैं यहाँ पे गया, अपने लैब को लॉग इन किया मैंने, इस तरीके से आप लोगों को भी लैब मिलेगी, यू गाइज कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और आप लोग एक्सेस करके अपनी लैब को पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ये लैब है, मैं सिर्फ एक फायरवॉल अभी मैंने ऑन किया, बाकी सारी डिवाइस मेरी ऑफ है, राइट। यहाँ पे अलग अलग मेरा लैन सेगमेंट है, कोई DMG का हो सकता है, कोई ट्रस्ट का हो सकता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसके अंदर अगर इसमें फायरवॉल को खोलता हूँ, राइट, सो आपको यहाँ दिखेगा कि इस फायरवॉल के अंदर आपको, लेट मी शो, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा कैसे शुरू से फायरवॉल को बिल्कुल स्क्रैच से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आई हैव द डॉक्यूमेंट एज वेल, सो आप लोग अगर देखोगे तो हाउ द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू हैपन फॉर द वेरी डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन, कोई आपको नया फायरवॉल मिलता है तो हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट। सो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाउ आपको फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना। अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा लुक एंड फील हो, कैसे हम CLI से कंसोल से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एंड देन कैसे उसको GUI पे हम एक्सेस करेंगे, क्या प्री रिक्विजिट होती है, कैसे हम सर्विसेज अलाउ करते हैं उसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे, कैसे हम LAN इंटरफेस बनाते हैं, कैसे हम WAN इंटरफेस बनाते हैं, कैसे हम राउटिंग करते हैं, कैसे हम पॉलिसी करते हैं, कैसे हम, बाकी तो सिलेबस धीरे धीरे होगा कवर, बट इनिशियली यू अंडरस्टैंड कि बेसिक एक फायरवॉल फीचर किसी फायरवॉल के थ्रू हम कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे गया मैं, और इसका मैं पासवर्ड एक मिनट में यहाँ टाइप करता हूँ, let me see, I think I put it the wrong password. See, so this is the FortiGate firewall. So इस फायरवॉल के अंदर अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो या मैं इसको ब्राउजर में डाल देता हूँ, तो देखो यहाँ पे कमांड चलाया सो सिस्टम इंटरफेस एंड यू पुट द क्वेश्चन मार्क। सो आपको सबसे पहले इस फायरवॉल का भी CLI एक्सेस है, अगर मुझे GUI एक्सेस लेना पड़ेगा तो मुझे इसके मैनेजमेंट इंटरफेस की IP लेनी पड़ेगी। तो टेक्निकली इन द Palo Alto फायरवॉल हमारे पास एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट IP एड्रेस होती है, लेकिन Fortinet में ऐसा नहीं होता है। Fortinet में जो आपका WAN IP एड्रेस होता है दैट कुड बी, और जो भी IP एड्रेस पोर्ट 0 पे होता है, मतलब पोर्ट 1 पे होता है, मतलब एज ए न्यूमेरिकल इसको 0 भी हम बोल सकते हैं, पोर्ट 1 पे जो भी IP एड्रेस होता है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए मैनेजमेंट IP एड्रेस। सो उसको आप वैन की तरफ यूज कर सकते हो, उसको मैनेजमेंट की तरफ यूज कर सकते हो, या आप उसको मतलब प्योर वैन की तरफ यूज कर सकते हो, या प्योर उसको मैनेजमेंट की तरफ यूज कर सकते हो, दोनों की तरफ यूज कर सकते हो। इट्स टोटली चॉइस टू यू, बाकी मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे होता है। बट यू सी बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट 1 पे एक IP मिला हुआ DHCP से, देखो यहाँ पे इसको मैं स्टैटिक भी दे सकता हूँ, बट दिस इज DHCP, क्योंकि ये हमारे क्लाउड में ये फायरवॉल जो कनेक्टेड है पर्टिकुलर किसी
कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसमें उस राउटर पे डीएससीपी फीचर इनेबल है। सो अगर मैं उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉग इन करता हूँ तो ये अपने आप डीएससीपी से आईपी उठा लेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएससीपी से राउटर पे फीचर अवेलेबल है। तो अगर मैं इस आईपी से अगर मैं लॉग इन करूंगा अपने ब्राउजर में जाकर, क्योंकि मैं लैन में ही बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ HTTP, सिंपली आप HTTP टाइप करो और 192 एंड आईपी इज 135। जैसे मैंने टाइप किया, विल गेट द प्रॉम्प्ट कि आप FortiGate फायरवॉल को लॉगिन करो। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, दिस इज GUI ऑफ द FortiGate फायरवॉल। सो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने एडमिन और इसका पासवर्ड भी अभी एडमिन है, मैंने इसको लॉगिन कर दिया। तो देखो ये अभी 40 OS मीन्स जो 40 OS है हमारा, ये अभी दिखा रहा है 7.0, मतलब अब ये इस OS वर्जन पे चल रहा है। अपने आप में लॉगिन किया तो कुछ इसका यूट्यूब चैनल भी इसका खुल गया, जो इंटीग्रेटेड इनका वीडियो कुछ है जिस OS के बारे में कुछ कुछ बताएगा कि इस OS में क्या है, आप इसको वॉच कर सकते हो कि या सो यहाँ पे ये वीडियो के बारे में बता रहा था, मैं इसको मैं ओके कर देता हूँ एंड देन इट इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम दिस। सो देखो अभी यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको जब फायरवॉल जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपको बहुत सारे फीचर आपको दिखेंगे, जो मैं एक एक करके थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू देता हूँ जस्ट फॉर द गेटिंग द नॉलेज। राइट स्लो। सो देखो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर आप जितनी भी बेसिक जो चीजें हैं फायरवॉल के बारे में, जैसे होस्ट नेम क्या हो गया, स्टेटस देख रहे हो तो होस्ट नेम क्या होगा, सीरियल नंबर क्या हो गया, फॉर्मवेयर क्या है इसका है, मोड क्या है, सिस्टम टाइम क्या है, अप टाइम क्या है, वन आईपी, सब कुछ अननोन दिखा रहा है अभी। क्या सिक्योरिटी फैब्रिक के अंदर क्या क्या आपके पास पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आपका सिक्योरिटी फैब्रिक कनेक्शन अभी इस पे है, इसके आगे 40 एनालाइजर, 40 क्लाउड, 40 गेट क्लाउड, ये सारी चीजें अभी इस पर डिसेबल है, हमने इसको इनेबल नहीं किया। 40 सैंडबॉक्स भी इस पर डिसेबल है, 40 मैनेजर भी डिसेबल है, हम बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे। 40 स्विच भी हमारे पास नहीं है, बट ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ दिख रहा है। सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो आपके बारे में जो भी आपके वर्डिक्ट्स होंगे थ्रेड्स के बारे में, कोई सिक्योरिटी लैंडस्केप होगी उसके बारे में, तो वो भी सारी चीजें आप देख सकते हो, उसके बारे में आप समझ सकते हो। राइट, नेटवर्क के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपके पास राउटिंग के बारे में बताया कि राउटिंग किस तरीके से कनेक्शन है, डीएससीपी क्या। तो डैशबोर्ड में बेसिकली आपको ओवरव्यू मिलता है, सो यू कैन जस्ट लुक एंड फील कि मेरा नेटवर्क किस तरीके से दिख रहा है, मेरे फायरवॉल के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें देख सकते हो। So Dhirendra is asking, good evening. Yes, Dhirendra, good evening. By default, boxes is coming as a NAT device or only other mode? So देखो धीरेन्द्र जी, इसमें जो बॉक्स हमारे आते हैं ना, उसको NAT डिवाइस की तरह काम नहीं करते। एक फायरवॉल होती है, इसके अंदर आप NAT फीचर को इनेबल कर सकते हो, मतलब आपको सोर्स NAT करना तो इनेबल कर सकते हो, डेस्टिनेशन NAT करना तो इनेबल कर सकते हो। सो इट्स टोटली यू अप टू यू कि आप कैसे उसको यूज करना चाहते हो। जैसे आपने पोलो ऑल्टो पढ़ा होगा, तो पोलो ऑल्टो के साथ भी हम सोर्स नेट डेस्टिनेशन नेट करते थे ना, सेम चीज यहाँ भी आपको करना है। आपको कुछ नया नहीं करना है, बस आपको नेट में ये मोड, अच्छा ये दिखा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मोड नेट। सो दिस इज जस्ट मोड ऑफ द नेट, इसमें आपको सोर्स नेट बाय डिफॉल्ट इसमें इनेबल होता है, इसलिए नेट मोड दिखा रहा है। जस्ट बाय डिफॉल्ट इज कमिंग इन द नेट मोड, बट इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर सिस्टम सेटिंग में जाओगे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, विच आई शो यू लेटर स्टेज। बट बाय डिफॉल्ट ये नेट मोड आपको दिखा रहा है, क्योंकि इस पे आपको बाय डिफॉल्ट आपको सोर्स नेट किया हुआ मिलता है हर एक फायरवॉल के अंदर। जब भी आप फायरवॉल होते हैं तो सोर्स नेट बाय डिफॉल्ट इसमें आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप डैशबोर्ड के अलावा जाओगे तो नेटवर्क हमारे पास है। नेटवर्क के नेटवर्क में जाओगे तो देखो यहाँ पे आपके इंटरफेसेस कैसे कॉन्फ़िगर होने हैं इस फायरवॉल पे। जैसे अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर मैंने नहीं किया, बाय डिफॉल्ट इसने डीएचसीपी से आपको इंटरफेस यहाँ पे आईपी मिल रखा है इसको, बट आपके पास अलग अलग हमारे पास इंटरफेसेस हैं। पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 4 है, पोर्ट 2 एंड 3 ये सारे कनेक्टेड हैं, बस इसमें कोई आईपी हमने नहीं दे रखा है, तो दे आर शोइंग द ग्रीन, बट हमारे पास कोई आईपी नहीं है। अगर मुझे इसको भी कॉन्फ़िगर करना, आई कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट क्या फीचर इनेबल है इस इंटरफेस पे, तो पिंग इनेबल है, एचटीटीपीएस इनेबल है, एसएसएच इनेबल है, एचटीटीपी एफएमजी, बट कुछ और भी अगर एडिट करना है मुझे, कुछ पोर्ट पे और भी अपने हिसाब से मुझे कुछ इनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो ये आईपी बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस डीएचसीपी से ले रहा है, अगर मैनुअल करना तो मैनुअल कर दूंगा, तो कुछ मुझे मैनुअल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा।
अगर आईपीएम से मैनेज है तो वो भी आप कर सकते हैं। वन आर्म स्नीपर्स मोड में अगर इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। वन आर्म स्नीपर में टैप मोड जैसे आप पोलो में करते हो, सेम फीचर इज गोइंग टू हैपन कि आप पैकेट कैप्चर बस करना चाहते हो तो वो आपके पास ये ऑप्शन है आपके पास। यू कैन ऑल्सो डू दिस वाया दिस वे, राइट। इसी तरीके से कौन सा इंटरफेस पे क्या क्या एक्सेस आप अलाउ करना चाहते हो। अगर चाहते हो कि मेरे इंटरफेस पे सिर्फ HTTPS अलाउ हो और SSH अलाउ हो और पिंग अलाउ हो, तो आप यहाँ से चेंज कर दोगे तो बाकी चीजें जैसे HTTP जो है नॉन सिक्योर होता है, सो इसको ब्लॉक कर सकते हो। इसको ब्लॉक कर सकते हो। एंड आप अगर सिक्योर फैब्रिक कनेक्शन को अलाउ करना चाहते हैं SNMP को, तो उसको भी आप कर सकते हैं। शेखर शेखर इज आस्किंग FortiGate फायरवॉल के लिए पढ़ने से कौन सा सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन शेखर। सो मैं उस पे आ रहा हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेशन करना है आप लोगों को, कैसे करना है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशन पार्ट ऑल्सो टुडे क्लास ओनली। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं पूरी सर्टिफिकेशन बताऊंगा कि क्या क्या रोड ऑफ लाइक लर्निंग होगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन आपको किस लेवल पे करना है, और कौन सा फ्री सर्टिफिकेशन है और कौन सा पेड सर्टिफिकेशन है। सो जस्ट होल्ड योर थॉट्स। निखिल मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आई डोंट नो अबाउट नेटवर्किंग, हाउ कैन आई स्टार्ट योर करियर। सो निखिल, अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप CCNA से स्टार्ट करो। CCNA इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर जर्नी इन द नेटवर्किंग। तो आप पहले CCNA करो, फिर बाकी चीजें आप करना, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मूव ऑन दिस सेक्शन। So Harsh is asking what is the adding process of the virtual port on the LAN port. So Harsh, इसको मैं बताऊंगा पूरा एक एक करके कि कैसे इसको ऐड करते हैं, कैसे लैब बताते हैं, लैब बनाते हैं। तो जब मैं इसको डे 1 पे कॉन्फ़िगर करूंगा ना इस लैब को, जो मोस्ट प्रोबेबली हम अगली क्लास में करेंगे, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे पोर्ट को हम इस फायरवॉल पे कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो पीसी पे कनेक्ट होगा, किस तरीके से आईपी साइन होता है, कैसे ये काम करता है। तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट। आप टेंशन मतलब मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा। सो मैं ये बात कर रहा था कि FortiGate फायरवॉल के बारे में। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस को आप अलाउ कर सकते हो। जैसे मैं गया अभी, मैंने यहाँ पे जाके मैंने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद चेंजेस हो जाएंगे अब मेरे पास। अब इस इंटरफेस पे देखोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 सर्विसेज इनेबल हैं। पहले बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी पिंग, HTTPS और SSH ही सिर्फ इनेबल है। मीन्स अगर इस इंटरफेस को, आईपी को अगर पिंग करना चाहोगे तो पिंग हो जाएगा। इसको अगर ब्राउजर से एक्सेस करना चाहोगे, जो मैंने अभी एक्सेस किया हुआ है, तो हो जाएगा। लेकिन ये नॉन सिक्योर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं खुलेगा, ये फायरवॉल नहीं खुलेगी, क्योंकि मैंने इस पे HTTPS अलाउ कर दिया है। तो मुझे HTTPS कनेक्शन लेना पड़ेगा इस इंटरफेस को अगर लॉगिन करना है। तो देखो ये बंद हो गया खुलना, क्योंकि मैंने HTTPS को डिसेबल कर दिया था। अब मुझे जाकर इसके आगे HTTPS लिखना पड़ेगा, तभी ये फायरवॉल मैं लॉगिन कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने वहां पे HTTP को डिसेबल कर दिया। या समहाउ ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो let me just allow the HTTP as well. So let me just go on the admin firewall, right? So अगर आपको, जैसे अभी मैंने इस पे HTTPS अलाउ कर दिया, बट ड्यू टू द एवोल्यूशन लाइसेंस ये सपोर्ट नहीं कर रहा। बट अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए एंड इफ यू वांट टू अलाउ, तो कैसे आप अलाउ करोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप जैसे इंटरफेस पे कन्फिगर करते हो सेट अलाउंस, इस पे इंटरफेस पे जाकर, अभी जैसे अभी हमने 3 चीजें अलाउ किया, लेकिन HTTP मुझे अलाउ करना पड़ेगा। तो आपको कन्फिग टीज में जाना है इसके CLI में, एंड जाने के बाद यू जस्ट हैव टू डिफाइन दैट सम कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपका ये चीजें चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आ गया कन्फिग टी में, सॉरी, इसमें कन्फिग सिस्टम इंटरफेस में जाना पड़ेगा, कन्फिग सिस्टम इंटरफेस में। और एडिट पोर्ट, कौन सा पोर्ट को एडिट करना है, पोर्ट 1 को, पोर्ट 1 को एडिट करो और इस पे एक कमांड चलाओ। इस पे आपको चलाना पड़ेगा, जस्ट वेट, सेट अलाउंस वाली कमांड चलानी पड़ेगी इस पे आपको। हाँ क्या चल क्यों नहीं रहा है, सेट अलाउंस देखो यहाँ पे। तो अभी इस पे मैंने HTTP हटा दिया था, तो मैं जाके यहाँ पे HTTP दोबारा चला देता हूँ। और HTTPS था ही, आप इसको लिख सकते हो, HTTPS भी लिख सकते हो, SSH भी लिख सकते हो, एंड आप इस पे पिंग भी लिख सकते हो, राइट। ये आपने कर दिया, तो अभी आपका ये यहाँ पे सेट अलाउंस हो गया, राइट। सो अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ, वेट।
और चल रहा है कमांड, एंड कर दिया। अब मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ क्योंकि HTTPS बाय डिफॉल्ट इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये एवोल्यूशन लाइसेंस है। देखो अभी लॉगिन हो गया क्योंकि हमने उस पर डिसेबल कर दिया था, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको इनेबल दोबारा से कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना कई बार फाइल एक्सेस चला जाएगा तो लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, द अलाउंस सेटिंग ऑन द इंटरफेस, जहाँ पे आप जाके चीजों को आप चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो ये नेटवर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसी के नेटवर्क के अंदर आपको राउटिंग भी करना है। राउटिंग में सारी चीज बताऊंगा आपको, स्टैटिक राउटिंग कैसे करना है, आपको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे करना है, आपको रिप कैसे इनेबल करना है, आपको ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, बीजीपी कैसे करना है, और इन सब का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो यू आर गोइंग टू गेट एवरी नॉलेज इन दिस सेक्शन। एसडीएन हम नहीं कवर करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल, राइट। एसडीएन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। पैकेट कैप्चर सीखोगे आप, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो सीखोगे। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस ये ले रहा है, बट इफ यू वांट टू डू सम डीएनएस एज पर योर जो भी आपके इंटेंट है, जैसे मैं गूगल का डीएनएस देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ डीएनएस को भी। देख रहे हो ये डीएनएस क्वेरी भी कर रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है आपका 10 मिली सेकेंड्स। इस तरीके डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन आता है, दैट इज द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द फायरवॉल। राउटिंग के बाद आपको पॉलिसी भी पता होना चाहिए कि फायरवॉल की पॉलिसी कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम पॉलिसी नई क्रिएट करते हैं, राइट। क्या हम इसमें सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस हम जानते हैं, राइट। किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे, सब कुछ इसको हम देखेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर। So async basically 40 manager and 40 analyzer is definitely going to be covered, but उसकी लाइसेंस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो विल सी कुछ वर्क अराउंड निकाल कर मैं आप लोगों को उतनी सी बता दूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कभी काम करने में, राइट। बट इट इज गोइंग टू बी कवर्ड डेफिनेटली, बट क्योंकि लाइसेंस इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, बट विल ट्राई टू गेट दोज लाइसेंसेस एज वेल एंड विल कवर 40 manager and 40 analyzer as well. I'll show you how it is going to look like, किस तरीके से 40 मैनेजर से हम पूरी फाइल को मैनेज करते हैं, एनालाइजर से हम किस तरीके से पूरे लॉग्स एंड पूरे थ्रू आउट द पूरी जर्नी जो होती है आपकी फोर्टिनेट फायरवॉल की, वो कैसे हम उसको ट्रैक करते हैं। सर आज केवल मेरे क्वेश्चन को डेमो से समझा दीजिए, नेट टाइम। सो व्हाट इज द क्वेश्चन योर हर्स, कैन यू जस्ट पुट योर क्वेरी एज वेल, सो आई विल जस्ट हैव अ लुक योर क्वेश्चंस, मैं देखता हूँ क्या आप क्लियर कर सकता हूँ, राइट। सो मूविंग नेक्स्ट। सो आप यहाँ फाइल पॉलिसी बना सकते हो। इसके अंदर नेट देखो, बाय डिफॉल्ट आपका सोर्स नेट इज इनेबल हियर। सो आपका यहाँ नेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर देखो सिक्योरिटी फीचर्स जो मैं बता रहा था, एडवांस फीचर, कि आपको एंटीवायरस, you want to protect your system with any virus attacks, you want to protect with the any kind of the web filtering, you want to protect with DNS filtering, application control, IPS, file filter, SSL inspection, ये सारी चीजें इट इज गोइंग टू बी मास्टरपीस ऑफ दिस सेशंस। आपको लाइव दिखेगा कि किस तरीके से वायरस को हम ब्लॉक करते हैं, किस तरीके से हम यूआरएल को ब्लॉक करते हैं, किस तरीके से हम सिग्नेचर को ब्लॉक करते हैं, किस तरीके का डीएनएस सिक्योरिटी करते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं। दिस ऑल आर गोइंग टू बी डिस्कस थ्रू आउट द सेशन। सो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे आईपी पूल, डीएससीपी, वर्चुअल आईपी, ये सारी चीजें देखोगे, आपको यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। सो ये पॉलिसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप कभी फायरवॉल के मतलब एक्सपर्ट इंजीनियर नहीं बन सकते हो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखते हो। फिर ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है। जैसे आपको वायरस की फीचर को यूज करना है तो उसके लिए आपको प्रोफाइल बनाने पड़ते हैं कि भाई किस तरीके से वायरस में क्या पैरामीटर मैं उसको ऐसा डिफाइन करूं ताकि मेरी फाइल को स्कैन कर सके, उसको ब्लॉक कर सके। तो यह बाय डिफॉल्ट है, कुछ कुछ वाईफाई डिफॉल्ट है, बट अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। किस टाइप की फाइल को इंस्पेक्ट करें, HTTP, SNMP, POP3, IMAP, FTP, CIFS, उस पर क्या एक्शन करे, आप उसको लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। वीडियो फिल्टरिंग भी करना चाहते हो वो भी फीचर आपके पास है। वेब फिल्टरिंग का भी फीचर है, डीएनएस फिल्टरिंग का, एप्लीकेशन कंट्रोल का, इंट्रूजन प्रिवेंशन का, एसएसएल इंस्पेक्शन का। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके विल सी। देन वी हैविंग द VPN कॉन्फ़िगरेशन, हाउ द VPN कॉन्फ़िगरेशन, IPsec टनल कैसे हम बनाएंगे, राइट। एसएल VPN पोर्टल क्या होता है, कैसे 40 क्लाइंट हमारे कनेक्ट होते हैं थ्रू द रिमोट यूजर VPN के लिए, वो सारी चीजें हम समझेंगे। फिर हम VPN लोकेशन के बारे में समझेंगे, VPN के एक एक स्टेप कॉन्फ़िगर, IPsec फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, साइड टू साइड टनल कैसे बनती है, कैसे उनके बीच कम्युनिकेशन होता है। दैट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन द डीप साइड, बिकॉज अगर आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर हो तो आपको IPsec का फंडा
मीन्स क्लाइंट टू साइट और साइट टू साइट वीपीएन, दो हमारे पास टर्म होते हैं, आपको पता होना ही चाहिए, क्लाइंट टू साइट एंड साइट टू साइट वीपीएन। अगर आपको ये, अगर सिक्योरिटी इंजीनियर होकर नहीं पता है तो यू जस्ट हैव टू लाइक अपग्रेड योर नॉलेज, राइट, आपको पता होना ही चाहिए। सो धीरेन्द्र जी पूछते हैं कि ऑल फीचर आर कमिंग विद द बॉक्स और एनी एडिशनल लाइसेंस वी नीड टू परचेज। सी धीरेन्द्र, अगर आप कोई भी फोर्टिनेट फायरवॉल लेते हो, कोई भी फायरवॉल लेते हो दुनिया में, तो आपको लाइसेंस खरीदने पड़ते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जो हमारे पास अभी ओएस इमेज है जिसको हम यूज करेंगे, इसके पास हमारे पास एवोल्यूशन लाइसेंस है, तो इसके थ्रू हम सारी टेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन आपकी कंपनी में जो फायरवॉल लगी होगी जिसका परमानेंट लाइसेंस होगा, तो यू जस्ट हैव टू परचेज दो लाइसेंसेस। ऐसा नहीं है कि आपने बॉक्स खरीद लिया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको लाइसेंस का भी परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहते हो लैब में, तो आपको फ्री लाइसेंसेस मिलती हैं, जिसमें आपको 1 महीने का 15 डेज का आपको फ्री ट्रायल ओएस मिलते हैं, या मैं ओएस दे दूंगा जिसको एक बार आप रिसेट कर दोगे, जो भी मैं लैब दूंगा उस पे आपको, जब तक आप यूज करोगे 15 दिन 1 महीने तक, तब तक आपको लाइसेंसेस आपको उसमें यूज रहेंगे, फिर आपको रिसेट करके फिर से चेक कर लो। यस, सेम लाइसेंस कमिंग विद द सेम बॉक्स, या सारे बॉक्स पे लाइसेंस होते हैं, बस आपको उसको एक्टिवेट करना होता है, आपको उसको सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, आपके सारे लाइसेंसेस आपके बॉक्स पे होते ही होते हैं, राइट। फिर आपके यहाँ पे आता है यूजर ऑथेंटिकेशन। सो आपको किस तरीके से यूजर मैनेजमेंट, कैसे आप एलडेप सर्वर को आप इंटीग्रेट करते हो, एडी सर्वर को कैसे इंटीग्रेट करते हो। जैसे मान के चलो मेरे लैब में आई वांट टू इंटीग्रेट एडी सर्वर विद दिस FortiGate फायरवॉल, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से यूजर बेस में इस पे प्रोटेक्शन लगाऊंगा, किस तरीके से इसको ब्लॉकिंग करूंगा, अलाउ करूंगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू कवर। रेडियस सर्वर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यूजर डेफिनेशन कैसे हम यूजर बनाएंगे नया लॉगिन करने के लिए, गेस्ट यूजर को कैसे, यूजर का ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे L1 L2 L3 का ग्रुप बनाना है उनको, तो उन यूजर के बेसिस पे कैसे हम चीजों को डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल while doing the any kind of the configuration and troubleshooting. Then we have the system administration, कि भाई एडमिन अकाउंट्स कैसे बनाएंगे हम। एडमिन अकाउंट में जैसे एडमिन से सुपर यूजर अभी है, अगर मुझे कोई दूसरा अकाउंट बनाना है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का बनाना है मुझे, तो इसका पासवर्ड क्या होगा, क्या यूजर का नाम होगा, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उस यूजर से लॉगिन करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, किस तरीके का हमारा एक्सेस मिलेगा, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख सकें। Sir Arjun, this side, are we also going to have the DMOM part of this, have the multiple? Yes, VDOM is also going to be covered, because routing is part of the all is going to happen in the VDOM also. So let me show you here. So अगर यहाँ जाते हो आप, तो आपको सारी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। Routing is like my favorite, so no need to worry about anything about the routing. So यहाँ पे आपको सारी routing कैसे होगी, redistribution में एक एक चीज करके बताऊंगा। That is the next level. आप लोगों को बहुत मजा आएगा, trust में, क्योंकि routing is something is my favorite. Okay. सो आप लोगों को कैसे यहाँ पे वीडियो में कैसे राउटिंग होती है, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है आप लोगों को। देन इसमें HA, आपको HA बनाना है तो कैसे बनाओगे, राइट। फॉर्मवेयर के बारे में अगर देखना है, क्या मेरा फॉर्मवेयर चल रहा है, अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, देखो अभी करंट वर्जन, तो वो सारी चीज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इसको अपग्रेड करना होता है, कैसे आपको वीडियो में जस्ट राउटिंग, राउटिंग इंजन, आप जैसे आपके राउटर में राउटिंग होता है ना, वैसे ही ये एक तरह से हमारा वीडियो में जस्ट राउटिंग, राइट, वर्चुअल डोमेन जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको FortiGate जो फायरवॉल होता है ना, लेट्स से डिवाइड इन द FortiGate बाय 2 मोर वर्चुअल फंक्शन इंडिपेंडेंटली, अगर उसको करना है तो अगर उसको आप स्प्लिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। राउटिंग उसके अंदर कैसे होगा उसको भी कर सकते हो। तो वीडियो में जस्ट काइंड ऑफ द स्प्लिटिंग द फायरवॉल रिसोर्सेज, और उसके अंदर राउटिंग कैसे होगी उन फायरवॉल रिसोर्सेज के बीच में, वो भी आप इसको समझ सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ द वीडियो, लाइक द VRF, यू कैन थिंक अबाउट इट। यस, राइट। इस तरह से हमारा FortiGuard है। FortiGuard में आपकी ये सारी चीजें देखो, आपको वर्चुअल मशीन, अभी इसकी लाइसेंस एक्सपायरेशन का डेट यहाँ दिखा रहा होगा आप लोग को, तो अभी इसमें आपका बहुत सारे फीचर नहीं सपोर्टेड है, बट स्टिल विल टेस्ट दैट, मैं इसको टेस्ट कराऊंगा क्योंकि इसका वर्क अराउंड है मेरे पास, तो आप लोगों को सारे फीचर में टेस्ट करा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, आपका जो भी आपका FortiGate क्लाउड इंटीग्रेशन है, आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन होना है, तो किस तरीके से सारी चीजें आपकी होंगी, दैट विल सी। फीचर विजिबिलिटी आपको देखना है तो ये सारी चीज यहाँ पर दिखाएगा, क्या क्या फीचर इसके अंदर आपका चल रहा है। एडवांस राउटिंग आपका चल रहा है, VPN फीचर चल रहा है, एंटीवायरस के फीचर आपके इनेबल है, DNS फिल्टर इनेबल है आपके पास। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियो फिल्टर, वेब फिल्टर, इम्प्लिसिट फायरवॉल पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं। एंड फाइनली सर्टिफिकेट्स अगर जनरेट करना चाहते हो, जैसे SSL डिक्रिप्शन वगैरह के लिए, तो आपका SSL इंस्पेक्शन के लिए सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको लोकल सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं,
और जनरेट करके भी हम उसको यूज करके अपने हिसाब से डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन कर सकते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेशन फाइनली आपको ट्रबल शूटिंग के लिए लॉग्स कि हमारे में क्या लॉग जा रहा है, लोकल ट्रैफिक क्या है हमारे पास, अभी तो कोई हमारे पास लॉग है नहीं, स्निपर ट्रैफिक क्या है, एसएल क्या है, फाइल फिल्टरिंग क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, आईडीएस प्रिवेंशन क्या है, एनालॉमी क्या है, लॉग सेटिंग्स, ये सब करना चाहो तो देख सकते हो। सो हमारे पास बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस डैशबोर्ड, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें बताया, बट इसको खत्म करते करते वी नीड अ मोर टाइम्स, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। सो विल हैव टू गो थ्रू द अराउंड 2 मंथ जर्नी, हमें साथ में करना पड़ेगा, तब जाके हम इस पूरे चीजों को हम डिस्कस करके एक एक चीज हम समझ पाएंगे कि हमारा फायरवॉल कैसे काम करती है, कैसे इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो देयर इज हाउ मेनी आईपीसेक टनल थ्रूपुट इंटरनल 48 ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे ना, कैसा प्लेटफॉर्म है। आईपीसेक का टनल जो होता है मैक्सिमम सपोर्ट करता है आपका 400 एमबीपीएस, राइट। सो अगर मान लेते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा टनल बना सकते हो, ज्यादा उसमें थ्रूपुट ले सकते हो, अगर प्लेटफॉर्म कम है तो उससे आप कम बना सकते हो, राइट। सो ये डिपेंड करता है हार्डवेयर मॉडल पे। गणेश इज आस्किंग विल लर्न थ्रू द सीएलआई, यस। तो देखो सीएलआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीएलआई करने का सबसे आसान तरीका, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सीएलआई लेने के लिए आपको सिंपल यही डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो, आपको कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जीवाई से नहीं करना चाहते हो, सीएलआई से कॉन्फ़िगरेशन करना, जस्ट क्लिक इट हियर एंड देखो यहाँ पे आप यहाँ से सो सिस्टम इंटरफेस, अगर आप पोर्ट 1 की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो देखो यहीं से दिख जाएगा आपको, देखो यहाँ पे दिख गया। तो CLI से सारी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, जैसे इस पे जाकर मुझे कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में गया यहाँ पे, और मान लेते हैं कि इस पे कोई और एक सर्विस मुझे अलाउ करनी है, जैसे मैं 3 अलाउ किया था, मुझे कुछ और अलाउ करनी है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ गया और यहाँ पे जैसे पेस्ट कर दिया, सॉरी, या मैं यहाँ पे जाकर सेट अलाउंस करो इस पे, सॉरी, एडिट पोर्ट पे जाना पड़ेगा आपको, एडिट पोर्ट 1, राइट, एंड देन सेट अलाउंस, और इसके ऊपर जैसे मान लेते हैं कि हमने एक और ऐड करना, टेलनेट ऐड करना है, तो मैं जाके यहाँ पे टेलनेट डाल देता हूँ, राइट, या मैं यहाँ पे टेलनेट लिख देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ से एंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में देखता हूँ, अगर एक मिनट, थोड़ा स्लो है सेशन, लेट मी टेक द न्यू सेशन। एक सेकंड दो आप लोग, ये थोड़ा सेशन स्टक हो गया, बट हम सारे कॉन्फ़िगरेशन को इस फायरवॉल पे बैठ के ही, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है यू कैन डू फ्रॉम हियर ओनली। सो अभी इसने एसएसएच किया है तो इसने ले लिया, लेट मी जस्ट डू द कंसोल, यहाँ से मैं करता हूँ, आई थिंक हमने टेलनेट अलाउ कर दिया, एसएसएच नहीं किया ना। सो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1, तो देखो इस पे हमने टेलनेट कर दिया, एसएसएच वाली कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई, तो आपको ऐड करना तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा आपको, राइट। सो मैं यहाँ पे सो सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, राइट, सेट अलाउंस, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, और क्या था हमारा, एक और था हमारे पास सर्विस, एसएसएच, टेलनेट, एचटीटीपी, पिंग भी हमने करना था, राइट। सो ये सब कर दिया। अब जैसे मैं किया देखो इसका एक्सेस अब आ गया होगा, देखो रिकनेक्ट कर लिया इसने लॉट्स, क्योंकि हमने टेलनेट अलाउ कर दिया, बाय डिफॉल्ट इसने एसएसएच किया, जो आपका ये पीसी था, ये जो सीएलआई से आपने लिया, तो ये आपने बाय डिफॉल्ट एसएसएच कर दिया, तो मैं मिस्टेकली मैं टेलनेट डाल दिया, बाकी डालना भूल गया, लेकिन आपको अपेंड करना होता है तो आपको बेसिकली उस पर जाकर आपको उसको ऐड करना है, ना कि उस पर आपको सिर्फ एक कमांड चलानी है, आपको ऐड करना है। तो छोटी छोटी चीजें हम देखा करेंगे जब हम लैब करेंगे, तो एंड देन विल कम टू नो कि ये चीजें कैसे चलती हैं। मैं इसको दोबारा लॉग इन करता हूँ। 135, let me see, show system interface port 1, ठीक है, आ गया इस पे। देखो अब यहाँ पे जाओ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो मैं बता दूँ यहाँ CLI आपको लेना है, तब एसएच आपको यहाँ से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, एंड यू कैन रन एनी कमांड, आप कुछ भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1, देखो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा, राइट।
सो आप CLI कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कर सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा कंसोल नहीं, आप किसी डैशबोर्ड से बैठ कर सारी चीजें कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. So now if we talk about this, markets trend, so we having the Gartner Magic Report. आप लोग देख सकते हो, in this Gartner Magic Report आप लोग को दिख रहा होगा कि Fortinet is leading the market. This is the last year September report. And इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि Fortinet is leading the market. And जब Fortinet लीड कर रहा है मार्केट को, तो ये बिल्कुल लीडर्स ऑफ लीडर है. देखो यहाँ पे Fortinet Palo Alto, कभी Palo Alto ऊपर रहता है, कभी Fortinet ऊपर रहता है, इनका ट्रेंड रहता है. किसी साल Fortinet ऊपर रहता है, कभी Palo Alto रहता है. इनकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि इंजीनियर की, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की जब बात करते हैं, तो इफ यू रियली हैव द गुड नॉलेज ऑफ Fortinet फायरवॉल और Palo Alto फायरवॉल, चेकपॉइंट फायरवॉल, तो आपको इतने कॉल्स आएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए सोचना नहीं है. अगर आप अच्छी स्किल्स रखते हो तो यू विल इजिली प्लेस्ड अ गुड जॉब where you can get, minimum 15 lakh पैकेज, 20 lakh पैकेज. अगर आपका 8-7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आराम से ले सकते हो, अगर आपको अच्छी स्किल्स है तो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है फायरवॉल की तो. क्योंकि फायरवॉल का आजकल हर कंपनी को सिक्योरिटी फायरवॉल की जरूरत होती है. एवरीवन वांट कि मेरा कंपनी में जो सिक्योरिटी है दैट इज द A1, ताकि मेरा कोई भी डेटा लीक ना हो, किस तरह का मेरे ऊपर अटैक ना हो. आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक है जो साइबर क्राइम का है. आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि नए नए तरीके से फ्रॉड होते हैं, नए नए तरीके से क्राइम्स होती हैं, फिशिंग ईमेल्स आती हैं. सो एवरीवन नीड टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी टू जस्ट प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क. तो उसके लिए कौन मैनेज करने के लिए चाहिए? उसके लिए इंजीनियर चाहिए. इंजीनियर कौन से इंजीनियर चाहिए? इंजीनियर वो चाहिए जिनके पास स्किल्स हो, जिसने पढ़ाई कर रखा हो, जिसको Fortinet फायरवॉल आती है, जिसको Palo Alto फायरवॉल आती है, जिसको प्रॉक्सी आती है, जिसको चेक पॉइंट आता है, जिसको ASA आता है. So the leader in the market is the Fortinet, Palo Alto, and Checkpoint, and leaders of leader as per the previous year Gartner report is the Fortinet firewall. That is a FortiGate firewall. Cisco देखो चैलेंजर्स हैं, विजनरी में आपको दिख रहा होगा ये बाराकूडा, हिलस्टोन नेटवर्क एंड सैंगफोर टेक्नोलॉजीज. बाकी आपको नीच प्लेयर में देखो, आपको माइक्रोसॉफ्ट है, AWS है, सोनिक वॉलेस, ये सारे भी हैं प्लेयर, ऐसा नहीं है कि नहीं है. बट द Fortinet इज जस्ट लीडर ऑफ द मार्केट. सो अगर आप ये फायरवॉल को अगर आप अपने को अपग्रेड करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट. ओके, so this is about the market trend about the Fortinet product. Now let's discuss about the certification part. This is last section we are going to discuss today, because हम अगली क्लास में बात करेंगे फायरवॉल होती क्या है, कोर्स कंटेंट एंड ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. बट थोड़ा सा हम सर्टिफिकेशन में बात करते हैं. देखो पहला जो 3 सर्टिफिकेशन है, NSE 1, NSE 2, NSE 3, राइट. सो दीज आर द सर्टिफिकेशन जहां पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. You can do free of cost, right? So just give me 1 minute, I'm getting one call. So you are going to become a network security engineer, Fortinet network security expert, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. You can go up to level 8. So this is a cyber security expert is a level 8. So आप यहाँ तक जा सकते हो. बट आपको अगर ये सब सर्टिफिकेशन करना है, NSE 1, NSE 2, NSE 3, so these are the basics. आप इसको फ्री में कर सकते हो, कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. And you can start doing certification, which is the our course content part is the NSE 4 and NSE 5. ये हम करने वाले हैं इस पूरे कोर्स कंटेंट में. सो अगर if you want to if you want to basically become the NSE 4 engineer, means network security engineer 4 level, so what the role is going to happen in your organization? So NSE 4 engineer basically having the responsibility to configure the firewalls, install the firewall, manage day-to-day configuration, monitoring and operation of the FortiGate device, support specific corporate network security policy. मतलब आपको पॉलिसी बनाना है, आपको राउटिंग करना पड़ेगा, राइट. फीस बताता हूँ हर्ष, आपको फी बताता हूँ इसका कितना लगेगा. आपको राउटिंग करना पड़ेगा, आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जो मैं बता रहा था, आपको बाकी छोटे मोटे सिग्नेचर वगैरह देखने पड़ेंगे, उनकी ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी. तो आइडियल ये सपोर्ट उनके लिए है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो होते हैं, जैसे L2 एंड L3 रोल होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनके लिए ये सर्टिफिकेशन है. सपोर्ट इंजीनियर जो है उनके लिए. तो NSE 4 is the like the, you can think about the CCNP level of certification of the cyber security और network security for the Fortinet firewall. So यहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन पेड स्टार्ट होती है. और इसका नेक्स्ट लेवल जो हम करेंगे, इसमें दोनों हम करेंगे, NSE 4 और NSE 5 करेंगे.
that is going to happen the next level कि आपको NSE 5 is going to recognize ability to implement network security management analytics using the Fortinet secure devices, and also you having a responsibility to understand the Forti analyzer, Forti manager, report Fortinet. So आपको एक next level के Forti manager के बारे में पता होना चाहिए, Forti analyzer के बारे में पता होना चाहिए, right? आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग, किस तरीके से इनका फीचर को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे NSE 5 में। हाँ धीरेन्द्र, यू आर राइट, अगर आपको SD बैन पढ़ना है, आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको NSE 7 एंड 8 करना पड़ेगा, तब इसमें अंदर आपको जाके नेक्स्ट लेवल का इंजीनियर बनते हो, जिसमें आपको बहुत एडवांस चीजें पता चलती है। तो हम इसको 6, 7, 8 जो हमारा है दैट इज नॉट गोइंग टू कवर, क्योंकि हमारे पास इसमें SD बैन वगैरह सब कुछ आता है। तो SD बैन का हम डेडिकेटेड मॉड्यूल करेंगे, तब हमारा NSE 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 जाके कवर होगा। तो बेसिकली आपका जो दो करिकुलम हम कवर करेंगे दैट इज NSE 4 एंड NSE 5, दैट इज गोइंग टू, यानी देखो आपका ये दोनों ही रोल हमारे L3 एंड L2 के लिए डेडिकेट होते हैं, कंसल्टेंट रोल पे हो तो होता है। अगर आपको उसके आगे लेवल बजाना है या एडवांस कंसल्टेंट लेवल बजाना है, तो आप 6 एंड 7 भी आजकल ट्रेंड है, क्योंकि SD-WAN भी आपको आना चाहिए। तो SD-WAN कर लेते हो तो कंप्लीट पैकेज हो जाता है, मतलब आपको सिक्योरिटी आ जाता है, आपको Forti मैनेजर, देखो SD-WAN करने के लिए आपको Forti मैनेजर आना ही चाहिए, उसके बिना आप कर नहीं सकते हो। Forti एनालाइजर आपको आना ही चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो, तो दैट इज गोइंग टू मोर एक्स्ट्रा एडवांटेज व्हेन यू डू द SD-WAN। Fortinet SD-WAN जब करोगे तो आपको और मजा आएगा। So these two course we are going to target, and then after हमारे पास जो एग्जाम का होता है, मैं बात करूंगा इसके बाद कि NSE 4 सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो हमारे NP लेवल का एग्जाम होता है, ये हमारा एग्जाम होता है। एग्जाम डिस्क्रिप्शन इसमें देखते हो, इसका एग्जाम का फी जो आप लोग पूछ रहे हो दैट इज गोइंग टू हैपन $400। सो इसमें होता क्या, देखो टोटल टाइम जो होता है एग्जाम का 105 मिनट्स होते हैं, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसको बुक करने के लिए पियर्सन VOUE अकाउंट से बुक करना पड़ेगा, और इंग्लिश एंड जापानीज लैंग्वेज में आती है, प्रोडक्ट वर्जन 7.2 आपको यूज करना पड़ेगा, और आपको 105 मिनट 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 80% प्लस आपके पासिंग मार्क्स होता है, और $400 आपको $400 आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो आप एग्जाम भी बुक कर सकते हो, दे भी सकते हो, और ये एग्जाम का हमारा लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा इस तरह से एग्जाम मिलता है, इस तरह से आप करते हो। और ये हमारा कोर्स एग्जाम में जो टॉपिक आता है NSE 4 का, ये हमारा एग्जाम का टॉपिक है। बाकी सिलेबस इससे बहुत ज्यादा है। तो देखो इसमें VDOM भी आपको दिख रहा है, VDOM टू स्प्लिट द FortiGate इनटू मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस। तो आप लोग पूछे तो VDOM कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्या करता है, मैं बताऊंगा पूरी चीजें। VDOM क्या होता है, वर्चुअल डोमेन का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर पॉलिसी करते हैं, कैसे NAT करते हैं, कैसे राउटिंग करते हैं, कैसे VPN करते हैं। तो ये लोग तो आप लोग को 100% सीखना ही सीखना है, कि इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इसके बिना तो आपको FortiGate कंप्लीट होगा नहीं, राइट? So yes, 400 is a fee approximately is going to be happen for this firewall. अब मैं आप लोगों को परमिशन देता हूँ, इफ यू गाइज हैविंग द क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क, कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन, कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो, क्योंकि आई हैव डन विद टुडे सेशन, प्रोबब्ली विल हैव द अनदर सेशन जहाँ पे मैं कोर्स कंटेंट और डीप डाइव में बात करूंगा, एंड देन विल स्टार्ट द ऑफिशियल क्लासेस। धीरेन्द्र कुछ पूछना चाह रहे सर हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी मैंने आपको अनम्यूट नहीं करने दिया बहुत देर तक, क्योंकि ड्यू टू नहीं नहीं, सिक्योरिटी ठीक है या सर। या तो सर ये क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लास क्लास टू टाइमिंग 8 to 9:30 रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। हेलो, के सर ये चार्जेस वगैरह कैसे होगा इसमें क्लासेस का? that you have to talk with Abhishek sir, so let me give the number in the group so you guys can talk. मैं एक नंबर देता हूँ, इसके लिए आप लोगों को बात करना पड़ेगा, सर right? जो लैब एक्सेस रहेगा हमारे पास, हाउ लॉन्ग इट विल स्टे? Just give me so lab access is going to see 2 month की मिनिमम लैब एक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट, जब तक वो क्लासेस है। बट अगर आपको लगता है कि आई नीड 15 days एक्सटेंशन, तो आपको बताना पड़ेगा, यू विल गेट दैट। सो 2.5 month तो आपको मिल ही जाएगा लैब एक्सेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक और है? सर जो आपका एक नया सेशन जो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, गेस फॉर बिपटेला, राइट? यस, विप्रेला एसडी बैन स्टार्ट हो रहा है, राइट। हाँ जी, तो उसमें जो टाइमिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, अगर मैंने दोनों स्टार्ट करने हैं पैरेलली? एक्चुअली बिपटेला मैंने आपका कर रखा ऑलरेडी, हाँ हाँ, बट द थिंग इज के मुझे अभी लैब के लिए देखना है वो। अच्छा ठीक है। तो सो अगर वर्षा, अगर आप विप्रेला की क्लासेस रहेंगी वीकेंड पे 10 to 12:30, सैटरडे एंड संडे,
राइट। हम्म। और ये वाली क्लास रहेगी 8 to 9:30 मंडे टू फ्राइडे। तो इसके अलावा सर कोई आपका एसटी वैन का उसका है अपना वर्षा को कोई अपकमिंग बैच इन अपकमिंग मंथ और हाँ, वीक? वर्षा का करना है तो वर्षा का पाइपलाइन में है, दैट बैच इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट दिस मंथ ओनली। सो वर्षा का भी हम स्टार्ट करेंगे बैच इसी महीने। ठीक है, मैं वर्षा के लिए फिर जाऊंगा हाँ क्योंकि विप्टेला ऑलरेडी मैंने डन कर रखा है। सो ठीक है, तो हेलो जस्ट फिर कहते ओवरव्यू के लिए। हेलो ठीक है सर, सर, रितेश थैंक बोल रहा हूँ हैं। यस LinkedIn रितेश, से। कैसे हैं सर रितेश जी? ये अपने FortiGate कब से स्टार्ट होगा मतलब? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा FortiGate। मतलब ये दिवाली के बाद ही ना? हाँ हाँ, दिवाली के बाद स्टार्ट ओके हो ओके जाएगा। ओके। सो विल हैव टू 3 मोर सेशन, दैट इज लाइक सर ओपन वीकेंड के सेशन लिए बैच कोई है क्या? FortiGate का। हाँ सर। नहीं, अभी FortiGate का वीकडेज का ही प्लान है, वीकेंड का बताते हैं आपको अगर प्लान करते हैं तो। हाँ हाँ सर, क्योंकि ऑफिस ठीक है, रहता है ना सर इसलिए। कोई बात नहीं, वीकेंड भी हम प्लान कर लेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम वीकेंड का प्लान कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हेलो सर, और एक क्वेश्चन था कि ये जो मैं क्लास कंप्लीट अगर कर दूंगा 2 महीने के बाद और फिर मेरे को कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को ये सेम रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है? यस, सो दिस रिकॉर्डिंग वीडियो इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम अवेलेबल। पहली बात तो आप लोग को रिकॉर्डेड सेशन का लाइफ टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है। आप इसको रिकॉर्डिंग को पूरे लाइफ टाइम देख सकते हो, कोई ईयर बेस नहीं है, 2 ईयर बेस नहीं, पूरी लाइफ टाइम आपके पास वीडियो रहेगी। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि आपने गुइनेट से कोई बैच आप करते हो किसी भी इंस्ट्रक्टर से, तो अगर आपको रिपीट करना है तो यू हैविंग द n नंबर ऑफ रिपीट फ्री क्लासेस। आप अगले बैच में कभी भी इसको रिपीट भी कर सकते हो। अगर लगता है कि नहीं यार, मैंने इस बैच तो कर लिया और 2 महीने 4 महीने बाद यू रियलाइज कि मैं कोई टॉपिक में स्टक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो जो भी अपकमिंग बैच है यू कैन जस्ट टॉक विद योर करियर काउंसलर एंड आप वहां से बात करके आप यू कैन जस्ट हैव द रिपीट सेशन एज वेल। तो भी हमारे पास फ्रीडम है। वीडियो प्लस लेक्चर फ्री रहेगा ना, हाँ हाँ मतलब हाँ, सेम? 1 ईयर तक आप फ्री रिपीट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कभी भी आके लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। और उसका सेम वीडियो भी मिल सकता है ना जो लेक्चर मैंने अटेंड किया नहीं, उसका? वीडियो तो आपको जो ओरिजिनल क्लास है दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि वीडियो एक्सेस देने में बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं, क्योंकि वो पोर्टल का कुछ मतलब बहुत सारा रीजन रहता है। तो वीडियो हम आपकी जो क्लास करेगी वही देंगे, बट आप दूसरे क्लास में आके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। द सेम कोर्स इज गोइंग टू बी डिस्कस। कोई ऐसा नया अपडेट आएगा तो नया अपडेट आपको मिल जाएगा बिना कुछ बोले। कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो यू गेट दैट अपडेट फ्री। ठीक है। बाकी तो सेम लेकिन कोर्स मैंने, कंटेंट रहेगा। हाँ मैंने ये अगर 40 का पूरा 2 महीने का कोर्स कर दिया, मुझे सेम? सॉरी सॉरी जीतू, या ज्योति, सर जीतू। हमको ड्यूरिंग द क्लास हमको लैब एक्सेस मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मिलेगा बिल्कुल, आप कर सकते हो। जीतू यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सॉरी, गलती से आप म्यूट हो गए थे। क्या पूछ रहे थे मैं आप? वही पूछ रहा हूँ, मैंने 2 महीने का कोर्स से कंप्लीट कर दिया और मेरे को सेम 40 का ही वीडियो चाहिए था देखने के लिए कि बाद में फ्यूचर में लगेगा तो वो तो तो आपको मेरे को वीडियो मिल मिल सकता? जाएगा ना, वही वीडियो तो आपको मिलेगी। आपकी जो क्लास होगी ना, जो आप क्लास करोगे वही वीडियो एक्सेस आपको मिलेगी, वो लाइफ टाइम रहेगी अपने उसका कुछ पास। लाइफ टाइम चलेगा? वही चाहिए था मेरे को। हाँ हाँ, वो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। ओके सर। सर ये सब 2 मंथ्स की क्लास होने के बाद हम NSE 4 दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दोगे आप। मैं बता रहा, देखो एग्जाम टॉपिक ये हैं और मैं सिलेबस कल दिखाऊंगा, वो देखना आप कितना आसमान जमीन का फर्क है। एग्जाम टॉपिक ये है, देखो एक एग्जाम टॉपिक है NSE 4 का, लेकिन सिलेबस इज समथिंग डिफरेंट। इसलिए मैंने आप लोगों को रेफरेंस भी बना रखा है, जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। एक्चुअल कोर्स मॉड्यूल टोटल 13 मॉड्यूल आई हैव, बट आपको NSE 4 में इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं होती, जो मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा, जो NSE 5 के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। बट आप लोग फ्रीली एग्जाम दे सकते हैं NSE 4। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते हो बुक से अच्छे से, तो यू गाइज आर वेरी एलिजिबल टू डू दैट ऑल NSE एग्जामिनेशन, बिना कोई टेंशन के दे सकते हो आप लोग। और सर आपका ये 40 पॉलिटी के अलावा चेक पॉइंट का भी क्लासेस रहता है चेक अवेलेबल है? पॉइंट का अभी हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी पोलो ऑल्टो की इतनी हाई डिमांड रहती है कि हम दूसरे फाइल पर जा ही नहीं पाते हैं। नाउ द FortiGate ऑल्सो स्टार्टेड, सो चेक पॉइंट इज नेक्स्ट, हम उसको भी स्टार्ट कर लेंगे जल्दी। ओके सर। ओके, ये ऑलराइट। सो वीडियो का एक्सेस कैसे रहेगा? वो यूजर नेम पासवर्ड दिया या ड्राइव पे आएगा? देयर इज टू वे, अगर आपको ऐप पे चाहिए तो ऐप पे भी हम दे सकते हैं, अगर ड्राइव पे चाहिए तो ड्राइव पे दे सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। सर ऐप कौन सा है सर? ऐप गुइनेट का ऐप है, एक वेबसाइट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सर लिंक उसको, प्रोवाइड कर दो ना सर। हाँ अभी मैं लिंक आप लोगों को देता हूँ। लिंक आप लोग अगर चाहिए तो ये है, यहाँ वेबसाइट है। अभी तो ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर में खोजोगे तो मिल जाएगा, राइट।
गुइनेट के नाम से, बट वेबसाइट का लिंक ये है, यहाँ से भी आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो कोर्सेज को। अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे इसको, कुछ प्रॉब्लम इसमें चल रही थी तो हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इस दिवाली के बाद सब शॉर्ट आउट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट गिविंग द एक्सेस ऑन द ऐप ओनली। चीज़ें पाइपलाइन में है, बहुत सारी चीज टेक्निकल इशू आ रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट इट इज गोइंग टू हैपन। यस धीरेन्द्र, यू आर राइट। आपको मैं बता रहा हूँ कि नाउ एट इन मार्केट में पोलो वोल्ट एंड फोर्टिनेट के बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतने ज़्यादा डिमांड है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज आस्किंग अबाउट द फोर्टिनेट पोलो वोल्ट, क्योंकि ये मेजर वेंडर है। हर जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, लेट्स सपोज आप एससीएल में काम करते हो, एससीएल के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि आप 3 कस्टमर मैनेज कर रहे हो, 2 कस्टमर के पास फोर्टिनेट होगा और एक के पास पोलो वोल्ट होगा, तो वो अलग अलग इंजीनियर थोड़ी हायर करेगा बंदा। कंपनी का सोचेगा यार मैं एक ऐसा रिसोर्स हायर करूं जिसको फोर्टिनेट भी आता हो और उसको पोलो वोल्ट भी आता हो। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। आजकल शेयर्ड रिसोर्स का जमाना चल रहा है, शेयर्ड सिस्टम चल रहा है, तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर द मल्टीपल स्किल्स, राइट। अजय, पोलो वोल्ट का भी बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पोलो वोल्ट को भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि पोलो वोल्ट तो चलता ही रहता है, फोर्टिनेट के साथ पोलो वोल्ट भी हम स्टार्ट करेंगे। So I believe we are done for today. So we'll connect again for the new session that is going to happen next week. So हम 2 सेशन नेक्स्ट वीक करेंगे दिवाली से पहले, and after Diwali we'll start the full fledged FortiGate classes, right? So I hope you guys are ready. And हम सर बिल्कुल कल इसको तो सेशन नहीं है ना? नहीं, कल नहीं है। अब हमारा बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम वेडनेसडे को करेंगे और एक फ्राइडे को करेंगे सेशन। वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन हम और करेंगे सेशन, एंड विल डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शुरू के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां से आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बनता है जिससे आप समझ पाते हो कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या इसको करने से मेरे को मिलेगा, कैसे फायरवॉल काम करती है। तो वो सारी चीजें जब हम समझ लेंगे तब एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एकदम से प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाने लगूंगा, फायरवॉल पॉलिसी बताने लगूंगा, तो कहीं ना कहीं चीजें ना मिस रहती है, कड़ी कहीं ना कहीं मिस रहती है, राइट। सो विल डू दैट। सर ये ऑलराइट, अपडेट कैसे मिलेगा सेशन वगैरह के लिए? क्योंकि मेरे को फॉरवर्ड एक लिंक था तो मैंने ज्वाइन किया, पर आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ, आप जस्ट सेंड योर हाय और आपको अपडेट मिल जाया करेगा। मैं अभी एक चैट पे नंबर दे रहा हूँ अभिषेक सर का, 50 देख रहा हूँ। 1 मिनट। ये नंबर पे आप हाई लिख के भेज देना, एंड यू कैन चैट विद दिस अभिषेक सर एंड ही विल प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ठीक है अजय? ओके सर। ऑलराइट, so happy evening to everyone, enjoy rest of your evening, see you again next week, okay? ओके सर, बाय बाय। Thank you, bye bye, take care, bye bye.